So we are talking about, let's cruise into the future. Let's get into our future. Let's start thinking about the future. So our career is the most important factor. So it's basically, you see, whatever career or profession that you choose, you will be spending, 2/3 of the day. So at least 8 hours, 8 to 10 hours in a day, which is about 1/3 of the day that you spend doing the same job. So it's very important that we choose that profession with all the information. We assess ourselves, we make sure we choose it very carefully, because we are going to actually be doing that, taking up that profession and doing the same kind of work for most of our life. So we're going to talk about the world of work, or how the career works for us. Yes, Saurabh, next slide, please. Okay. So see, it's all about, you are in high school now, so what do you want to be when you grow up? Just start to think now. And it's never too early. You have to have a goal, you look forward to your future, you think about your future, and then, you do things to achieve your goal. And what you do now will affect what you will do in the future. So the kind of subjects that you take, the interests that you follow, the hobbies, the passions, whatever you love to do, is what will affect how your future will be. When I say future, here we are talking about your career and profession. Yeah. Next slide, please, Saurabh. Okay. So when we start to think about ourselves, these are some of the questions that we should ask. What is it that I like? What is it that makes me jump out of bed? What is it that I hate, I don't like to do? Where does my interest lie? What do I love to do? And what am I good at? What are my skills? What are my talents? What is important to me? So here it is important. I'll just give you an example. I like to cook, but doesn't mean I can be a good chef. It could just be my hobby. So it's very important to go a little deeper into it. I like to cook, but do I want to cook to make a living? Do I want to be a chef? You have to ask that question. So think it thoroughly. It's not about you just think on one day and then is okay. So somebody is saying Hindi mein boliye. All right, Fatima, ये आप पढ़ पा रहे हैं जो स्क्रीन में है? फातिमा, आप स्क्रीन में ये सवाल पढ़ पा रहे हैं? ओके। तो जब हम ये सोचते हैं कि हमें जिंदगी में आगे क्या करना है, तो बहुत सोच समझ के हमें वो निर्णय लेना है कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। अब मुझे तैयार होना भी अच्छा लगता है, पर जरूरी तो नहीं है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट ही बन जाऊंगी। क्या मैं ये काम 8 घंटे दिन में कर सकती हूँ? इतना मजा आता है मुझे? क्या मेरे लिए बहुत जरूरी है? क्या मेरे टैलेंट है? किसके बगैर? मुझे लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है या अकेले काम करना अच्छा लगता है? मैं क्या काम को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ? ये सारे सवाल आपको पहले अपने आप को पहचानना है, अपने आप को ढूंढना है कि मेरे लिए क्या जरूरी है। मेरा दोस्त एक
कोर्स करने जा रहा है वही कोर्स मेरे लिए जरूरी हो अच्छा होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, चाहे आप लोग दोस्त हैं पर आपकी पर्सनालिटी उनसे बिल्कुल अलग है। कुछ चीजें मिल भी सकती हैं, कुछ चीजें बिल्कुल अलग होंगी। सो आपकी ख्वाहिशें, आपकी जरूरतें, आपकी पसंदीदा चीजें उनसे बिल्कुल अलग होंगी। तो इसलिए हमें पहले ये समझना है कि मैं कौन next slide. Ma'am, can't hear you. We can't hear you actually. Hello, ma'am. My voice is just here. Yeah, your voice is not clear, ma'am. Actually. Okay, because I am. Is this clear? Yeah, now it is fine. Okay, fine. ठीक है. तो अगली स्लाइड चले. मेरी आवाज आ रही है? ओके. तो पहला सवाल हमारा था Who are you? Is it clear? Voice is clear. Is my voice clear now? Check because I Yes. am able to. Not clear. Is it clear now? Let me check. Yes. Is it clear now? Yeah, Yes, it is, ma'am. Okay. Okay. So पहले हमने ये सवाल पूछा, आप अपने आप से पूछें Who are you और Who am I? और उसमें हम अपनी चीजें लिस्ट डाउन करेंगे कि क्या मेरे इंटरेस्ट्स हैं, क्या करना मुझे अच्छा लगता है, कौन से काम को मैं वाकई बहुत खुशी से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कौन सा ऐसा काम है जिसमें मैं कभी बोर नहीं होती, 15 घंटे भी दे दो तो वो उस पे कोई हमें परेशानी नहीं होती। तो फिर अगला है Where are you going? What are my goals? मुझे क्या करना, क्या मेरे उद्देश्य हैं। फिर आगे सवाल है What kind of jobs are available? किस तरह की नौकरियां मार्केट में हैं और कैसी नौकरियां हैं जो मेरी स्किल से मैच करती हैं। What different jobs that match my skills? आगे चले सौरभ, सुनाई दे रहा है? ओके. टेक एक्शन. आज नहीं आ रही, मैं तो पूरे उस पे बोल रही हूँ. आवाज आ रही है? Are you able to hear me? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो पहले हमने दो चीजें देखी, Who are you, मैं कौन हूँ, और Where are you going? किसको आवाज नहीं आ रही है? आप लोग सब प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले तो मेरी आवाज क्लियर आएगी. अगला है टेक एक्शन. तो पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे, सेट गोल्स फॉर योरसेल्फ. फिर हम एक लिस्ट बनाएंगे कि क्या क्या आप कर सकते हैं. When I say list all the kinds of jobs जो आप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप एक्सेल शीट में काम कर सकते हैं, आप मैथमेटिक्स कर सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं, आपको लगता है आप किसी को देखते हैं कि आप मार्केटिंग कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आप ढूंढेंगे कि किस तरह आप आसपास से लोगों से मिलके
कि किस तरह के काम लोग करते हैं, किस तरह के जॉब करते हैं, तो उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। आपके आसपास लोग जरूर नौकरी पे जाते होंगे, कोई हर्ज नहीं है, उनके पास जाइए, आप क्या काम करते हैं, आपने कहाँ डिग्री ली, किस तरह का आपका दिन होता है। फिर आप जब आपको लगे कि अरे ये जो मार्केटिंग का काम करते हैं ये मुझे अच्छा लगता है, तो फिर आप उस तरह के फिर आप रिसर्च करेंगे कि उस नौकरी के लिए मुझे कौन से कोर्स करने हैं, या मुझे ये इंटरेस्ट है, ये मेरी स्किल है, इसको बढ़ाने के लिए मुझे किस तरह के कोर्सेज करने हैं और क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप गोल सेट करेंगे। अब गोल के लिए मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप 8th में है, 9th में है या 10th में है, तो आपको सेट करना है कि सबसे पहले मुझे 12वीं करनी है, 12th क्लास पास करनी है, उसके बाद मुझे जो कोर्स करना है उसके लिए मुझे क्या तैयारी करनी होगी, मुझे अपने शहर में ही करना है या कौन से कॉलेज में जाके करना है, और किस तरह का एग्जाम देना होगा, एंट्रेंस देना पड़ेगा या सिर्फ नंबरों से हो जाएगा। तो ये सारी चीज जब आप ये सवाल अपने आप से करेंगे, और हमेशा लिख के करना है, बैठ जाओ कि मुझे सेट करना है कि मुझे आज से 5 साल बाद नौकरी शुरू करनी है, ये आप सेट करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता, ये आप अपने आप से पूछेंगे कि मुझे इतने सालों में अपने पैरों पे खड़े हो जाना है, तो अभी मेरी क्या स्किल्स है, कैसा काम करना मुझे अच्छा लगता है, मैं आसपास मेरे कैसा लोग काम कर रहे हैं। सो उन सब से फिर आप डिटेल्स में लिस्ट बनाते जाएंगे, और अगर मुझे ये कोर्स करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। अगली स्लाइड पे चलें सौरभ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या तो 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला, लर्न अबाउट योरसेल्फ, तो हमने अपने आप को पहले पहचानने की कोशिश की, मुझे क्या अच्छा लगता है, और जो आपको अच्छा लगता है वो आपके दोस्त से बिल्कुल अलग हो सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त जो चाह रहा है वही आपको भी अच्छा लगे। तो प्लीज ये एक्सरसाइज आपको खुद के साथ करनी है। फिर आप देखिए क्या क्या करियर्स अवेलेबल हैं, किस तरह के करियर्स में लोग जा रहे हैं, मेरे आसपास कौन से जॉब कर रहे हैं, उनसे बात करिए, क्या काम करते हैं, उनका सारा दिन। कोई जरूरी नहीं कि किसी ने MBA किया या BBA किया बस उतना ही काफी है, नहीं, उनसे डिटेल में बात करिए कि आप सुबह ऑफिस जाते हैं, सारा दिन आप क्या करते हैं, और बेझिझक होकर अपने सवाल पूछिए। फिर बनाइए एक अपना प्लान, मेक अ प्लान विद अ क्लियर गोल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सो हाई स्कूल के बाद जब आप 12वीं कक्षा पास कर लेंगे, अब आपको देखना है कि आपको कॉलेज जाना है एक सिंपल BA BCom BSc करने के लिए, या आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है, या कोई वोकेशनल स्कूल में जाना है। जरूरी नहीं है कि सबको पूरी डिग्री लेनी है। कोई सोचेगा नहीं 12वीं के बाद मुझे तो ना मैकेनिक बनना है, मैं ऑटोमोबाइल की ट्रेनिंग ले लेता हूँ, और पर सोच समझ के, ये नहीं कि ऑटोमोबाइल की ट्रेनिंग मिल रही है इसलिए ले लेता हूँ, पर सोच समझ के ये मुझे अच्छा लगता है और इसको करके मैं आगे कैसे इसको यूज करूँगा या करूँगी, ठीक है। क्या ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेनी है या मुझे आगे डिग्री लेनी है, कोई BSc MSc कर और एक वोकेशनल स्कूल में जाके ट्रेनिंग की है, नहीं। Your voice is not मेरी clear, ma'am. आवाज नहीं जा रही है, ये तो my voice, Your voice is not clear, ma'am. this is not clear. एक internet की, okay, can you hear me? Can you hear me? Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. Hello. Okay. So now it's okay. Okay. So basically मैं ये कह रही थी कि कोई भी ऊंचा या नीचा इसमें नहीं होता है, इसमें ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा नहीं है,
आपके लिए जो कॉलेज या जो कोर्स अच्छा है वो आपके लिए सबसे अच्छा है, ठीक है? और जरूरी नहीं है कि जो किसी के लिए बहुत अच्छा था आपके लिए भी अच्छा हो, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपकी जरूरत, आपकी परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए इसको डिटेल में अपने लेवल पे काम कीजिए। किसी बड़े के साथ बात करिए, पर अपने लेवल पे। किसी दोस्त ने वो उस कॉलेज में गया था तो उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई, इसलिए मुझे भी उस कॉलेज में जाना है, नहीं। पहले आप अपने आप को समझेंगे कि यही चीज मैं करना चाहती हूँ। ये कह रहे हैं भाई देयर इज सम नेटवर्क इशू। अब नेटवर्क इशू तो मेरे यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो सब क्लियर चल रहा है बेटा। Let me try again. हाँ, अब देखें, अब मेरी आवाज आ रही है क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, is it better now? Okay. ठीक है। आज यहाँ पे पावर कट हो रहा है, तो मैं अगर पावर कट हुआ तो शायद ब्रेक हो जाएगा, पर मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है? ये कौन क्या कह रहा है? दिस इज फॉर स्टूडेंट्स। ओह ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि हाई स्कूल के बाद आपको कॉलेज जाना है, डिग्री लेनी है या कोई वोकेशनल कोर्स करना है, ये आप अपना एनालिसिस करेंगे और हर एक के लिए ये अलग अलग चीज हो। ओके, ये जरूरी नहीं है कि जैसा कोई और कर रहा है वो आपके लिए भी होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप देखिए, आप कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी आपके शहर में डॉक्टर्स होंगे और क्लिनिक में 3-4 डॉक्टर्स हैं, सब एक ही स्पेशलाइजेशन के हैं। देखते हैं कि एक के पास तो अलाइनमेंट ही नहीं मिलती और कोई बिल्कुल खाली बैठा रहता है। इसका कारण कभी आपने सोचा है? क्योंकि जिस डॉक्टर के पास लाइन लगी रहती है, क्योंकि वो अपने पेशे से इतना प्यार करते हैं कि वो पूरी जी जान से पेशेंट्स को अटेंड करते हैं, तो पेशेंट्स को समझ आ जाती है। तो जब आप ऐसे प्रोफेशन चूज करते हैं तब आपका मन लगता है, आप जी जान लगा देते हैं। अगर आप इसलिए चूज कर लेंगे कि मेरा दोस्त उस कॉलेज में गया था, मैं भी वही कोर्स कर लेता हूँ, मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो कॉलेज की डिग्री को आपने कैसे यूज किया, ये आपके ऊपर है। आप नौकरी में या अपने काम में कितना सक्सेसफुल होंगे, ये उस शिक्षा को आप कैसे व्यवहार करेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये प्लानिंग बहुत जरूरी है। और हो सकता है किसी के साथ हो कि नहीं, मुझे 12वीं के बाद ही नौकरी करनी है, तो इसकी भी प्लानिंग आप कर सकते हैं। आसपास देखेंगे कि किस तरह की नौकरियां अवेलेबल हैं, किस तरह की नौकरियों में आप जा सकते हैं। पर जरूरत है हमें एक्सप्लोर करने की, तो वो सोचना शुरू कर दीजिए और एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए। आगे बढ़े सौरभ। सौरभ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, हेलो, यस, हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही। कोई कुछ कहना, कोई कुछ कहना चाह रहा है? ओके, तो ये सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन है जो आप, ओके, ये हाउ डू आई कम टू नो दैट दिस कोर्स इज अप्रोप्रिएट फॉर मी और नॉट। इसके लिए आप अपने आप से पहले सवाल पूछेंगे। हमने जो पहली 2 स्लाइड्स में बताया कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना है, कौन सा करियर चूज करना है, तब आपको ये सवाल पूछना होगा। अभी लेट मी फिनिश माय प्रेजेंटेशन, तब आप अपने सवाल पूछिएगा। होपफुली इसका जवाब आपको मिल जाएगा, नहीं तो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। फिर आप, ये सिर्फ डेफिनेशन है टास्क, जॉब, करियर और ऑक्यूपेशन की,
जिस पे आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। इस पे मैं ज्यादा वो नहीं टाइम लगाना चाहती। सौरभ आगे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Where and how do I start? So see, अब कैसे हम शुरू करें ये करना। आगे चलें प्लीज। सौरभ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Slide is up already. या नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो जब हम शुरू करें तो कुछ जो है ये मैंने रॉन्ग क्वेश्चंस लिखा है, ये सवाल आप नहीं पूछे। व्हाट जॉब्स आर इन डिमांड, व्हाट आर द मोस्ट हाई, व्हाट जॉब्स, कौन सी जॉब की ज्यादा डिमांड है, कौन से हाई पेइंग जॉब्स हैं, कौन से जॉब्स के लिए मुझे बाहर जाने का मौका मिलेगा, कौन सी ऐसी नौकरी है जिसमें सबसे कम काम करके मुझे सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, जिसमें सबसे कम घंटे लगाने पड़ेंगे, जिसमें मैं जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा, कौन सी जॉब आगे बढ़ती जा रही। यहां से शुरू नहीं करना है। These are wrong questions. Let's look at the right questions. आगे चलें सौरभ। राइट क्वेश्चंस ये है, व्हाट विल मेक मी हैप्पी। देखो मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया था ना, My slide was not clear. देखो राइट क्वेश्चन, व्हाट विल मेक मी हैप्पी। तो हमें पूछना है कि हमें कौन सा काम करके सबसे ज्यादा अच्छा लगे, ऐसा काम है जो मैं बहुत खुशी से कर सकती हूँ, चाहे 8 घंटे हो 10 घंटे हो, मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता। What am I passionate about? कौन सा ऐसा काम है जिसमें टाइम का नहीं पता चलता, मुझे होश ही नहीं रहती, क्योंकि मैं उसमें इतना डूब जाती हूँ या इतना डूब जाता हूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। What do I dream of doing? मेरा सपना क्या है, मैं आगे कैसे देखता हूँ। इसके लिए एक एक्सरसाइज भी होती है। आप एक दिन बैठ करके एक कागज कलम लेना और आंख बंद करके आज की जैसे तारीख अगर मैं कहूँ 23 मई 2020, अपने आप को इमेजिन समझते हो, अपने आप को विजुअलाइज, अपने आप को कल्पना करो कि 23 मई 2030 में मैं अपने आप को कैसा देखना चाहता हूँ या कैसे देखनी चाहती हूँ, कैसा मेरा दिन होगा। What will be my dream day? एक आदर्श दिन मेरे लिए क्या होगा। मैं सुबह उठूं, काम पे जाऊं तो कैसा काम मैं करूं, मेरे आसपास किस तरह के लोग होंगे, कैसा मेरा ऑफिस होगा या क्या मेरा शहर होगा, कैसी जगह। आप इमेजिन करेंगे तो उसके बाद हम कहते हैं बैकवर्ड्स काम करें, कि वो अगर मुझे अचीव करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। तो हम उल्टी तरफ चलें। हाँ ठीक है। What do I want to do? क्या मुझे लोगों से बातें करना अच्छा लगता है, क्या मुझे मशीनों पे काम करना अच्छा लगता है, क्या मुझे अकेले बैठ के कुछ रिसर्च या पढ़ना अच्छा लगता है, क्या मुझे लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है। ये आप सवाल अपने आप से करेंगे। Let's start with finding out who you are. So this is how we begin. किसी ने पूछा था ना, मैडम कहाँ से शुरू करें, कौन कोर्स है। पहले आप अपने आप को जानिए, फिर कोर्स पे आए। अगली स्लाइड सौरभ। तो ये कुछ ऐसे बहुत सारे डिफरेंस हैं। ये कुछ मैंने एक पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं उनसे रिलेटेड ये रिसर्च से पाया गया है कि जो लोग इस तरह के होते हैं वो ये जो करियर्स है इनमें
में सक्सेसफुल होंगे। इफ यू आर रियलिस्टिक, यू आर मैकेनिकल, यू आर वर्किंग विद मैकेनिकल या मशीनों के साथ, बिल्डिंग थिंग्स, यूजिंग टूल्स, तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, आर्किटेक्चर बनते हैं, फॉरेस्टर बन सकते हैं, पायलट है, मिलिट्री ऑफिसर है, क्राफ्ट्स पर्सन है, सो इंडस्ट्रियल आर्ट्स टीचर है। ये इसी तरह अब अगली 3-4 अगली साइड पे जाएं। रियलिस्टिक के अलावा अगला क्या है सौरभ? नेक्स्ट प्लीज। इन्वेस्टिगेटिव, मुझे बहुत जानना अच्छा लगता है, तो आप बहुत क्यूरियस हैं, बहुत उत्सुक रहते हैं और आपको विज्ञान जगहों में इंटरेस्ट है। सो साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इन्वेस्टिगेटिंग, स्टडी नेचुरल साइंस। सो आप केमिस्ट बन सकते हैं, इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, फिजिशियन बन सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन सकते हैं, डेंटिस्ट, इंजीनियर, फिजिसिस्ट, प्रोडक्शन प्लानर, बायोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, रिसर्च और तो ये कुछ जो है मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रही हूँ। जब आप आपसे सवाल पूछेंगे तो इनके दायरे मुझे मैं कैसे सुनाई दे रहा है? आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्योंकि मेरे यहाँ पावर कट हो गई थी। अब सुनाई दे रहा है? यस मैम। ओके, सो हमने देखा रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव। अब अगली पे चले, आर्टिस्टिक। तो क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक, सो आर्ट से रिलेटेड। Okay, so you like painting, designing, singing, dancing, writing, reading literature, listening to music. तो ये जो प्रोफेशंस हैं, आर्टिस्ट, इंग्लिश टीचर, म्यूजिशियन, एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव, पब्लिक रिलेशंस स्पेशलिस्ट, ये सब प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री ली है तो आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी उनको काफी कंटेंट लिखने की जरूरत होती है। मार्केटिंग करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट के लिए बारे में बताना होता है, लिखना होता है, काफी डिजाइनिंग करनी होती है। तो आर्टिस्टिक लोगों के लिए भी काफी तरह के प्रोफेशन है और आजकल के जमाने में तो बहुत सारे प्रोफेशन। सो इसलिए पहले अपने आप को ठीक है। अगली स्लाइड सौरभ। Okay, social में you are service oriented, teaching, helping, consulting, counseling. So इस तरह के jobs आप कर सकते हैं। एजुकेशन की फील्ड में थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूअर, टीचर, नर्स, आप इस फील्ड में जा सकते हैं। Put yourself please. Okay. सो एंटरप्राइजिंग, आपको अपना काम अच्छा लगता है, आपको सेलिंग, परसुएडिंग, डायरेक्टिंग, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, मैनेजिंग अ बिजनेस, ये आपको अच्छा लगता है, तो ये सब तरह के जॉब प्रोस्पेक्ट आप काम कर सकते हैं और इसके अलावा अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो आप अपने आप को एनालाइज करेंगे कि किस तरह की आपकी पर्सनालिटी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कन्वेंशनल, व्हेन आई से कन्वेंशनल मतलब कुछ लोग होते हैं बहुत सिस्टमैटिकली काम करते हैं, सब कुछ फाइल्स, रिकॉर्ड, सिस्टम, प्रोसीजर से उनको वो करना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे लोग ज्यादातर देखा जाता है कि बैंकर, ऑफिस मैनेजर, सेक्रेटरी, प्रूफ रीडर, डेटा प्रोसेसर, इस तरह के काम में ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्किल्स, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो, अब ये एक बहुत जरूरी बात कहूंगी मैं। कौन क्या कह रहा है? हाँ, एक बहुत जरूरी बात है। अब देखो, कोविड आया, रुक गया। मेरी आवाज आ रही है?
Yeah. So, Yes, ma'am. ओके सो कोरोना वायरस में देखो पूरी दुनिया रुक गई। इसके बाद वो ऐसा नहीं है कि लोग सफल होना रुक जाएंगे। एक सेकेंड, मेरी आवाज क्लियर नहीं है। कोई कह रहा है मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अब देखो मेरी आवाज क्लियर आ रही है। इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. ऐसी जिंदगी में बहुत सारी अनसर्टेनिटी। आप सुबह घर से निकले, चाहे कॉलेज जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए या खाने के लिए, रास्ते में आप किसी गाड़ी से जा रहे, गाड़ी खराब हो गई, ट्रैफिक जैम हो गया, तो अनसर्टेनिटी आ गई। आप इन चीजों को कैसे डील करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है सक्सेसफुल होने के लिए। कि क्राइसिस आया तो मैं कैसे मैनेज करूं, कोई मेरे सामने अड़चन आई तो उसके लिए अपने मेरी पर्सनालिटी कैसे रिएक्ट करती है। कुछ लोग होते हैं वो इतना परेशान हो जाते हैं तो वो कितना टाइम ही वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं वो इतना परेशान हो जाते हैं कि सोच ही नहीं पाते कि अगला कदम क्या लेना है। जरा सी मुश्किल आती है वहीं अटक जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे सौरभ। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट कि कोई भी नौकरी हो, ये स्किल्स बहुत बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स, जरूरी नहीं है हमें अंग्रेजी में बोलना आता हो। जरूरी ये है कि जिनके लिए हम काम कर रहे हैं या जो भी मुझे काम करना है उसको मैं हिंदी में, अंग्रेजी में, जो भी भाषा मेरा ऑडियंस समझ सकता है उसमें समझा पाऊं। दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। अब अगर 10 लोग हैं और 10 एक ही काम करते हैं, एक ही तरह का, लेट्स से एक फैक्ट्री में काम करते हैं, पर कोई अपनी बात को बता पाता है तो वो नजर में ज्यादा आएगा मैनेजर या अपने बॉस के। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी परेशानी आई हम किस तरह से उसको अप्रोच करते हैं। आप देखते हैं कि मेरे सामने ये अड़चन आ गई, क्या प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है जो आपने कॉलेज में पढ़ा हो वो वहां काम आए, लेकिन उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उसको सोचो कहाँ अड़चन आ रही है, क्यों आ रही है, मैं इसके कारण तक जाऊं, किस वजह से हो रहा है। ये एक बहुत जरूरी स्किल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कुछ परेशानी आती है कौन आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो आगे जल्दी बढ़ता है। ईगरनेस टू लर्न, मैंने तो जी पीएचडी कर ली है, अब इसके आगे तो कुछ जरूरत नहीं है। पर हो सकता है कोई नई, दुनिया में बहुत चीजें नहीं आ रही हैं। अगर आप अपने माइंड को क्लोज कर लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमेशा नई चीजें सीखने की एक उत्सुकता रहनी चाहिए। आपसे पूछा गया, ठीक है आपने एक डिग्री ली है, आपने एक कोर्स किया है, आपने कुछ सीखा है, तो हो सकता है आपके काम में वो कहें जी आपने ये सीखा है, ये काम है, इसके अलावा आपको हम ये भी सिखाना चाहेंगे। अगर आपने उत्साह दिखाया कि हाँ जरूर मैं ये तो जरूर सीखूंगा या जरूर सीखूंगी, तो लगेगा अरे ये बच्चा तो वाकई आगे बढ़ना चाहता है। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट नेसेसरीली कि आप आर्ट या लिख सकें या क्या। क्रिएटिव थिंकिंग इज बेसिकली कि कोई कहता है कि ए से बी जाने का एक रास्ता है और अगर आप ए से बी जाने के 4 रास्ते और भी हो सकते हैं। दिस इज क्रिएटिव थिंकिंग कि सोचो कि जो आज तक होता आया है उससे हटके हम कुछ कर सकते हैं, उसी चीज को और अच्छा करने के लिए। दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में। पीपल स्किल्स और सोशल स्किल्स, आप लोगों से कनेक्ट कर पाए। देखिए आप कहीं भी काम करने जाएंगे, एक बहुत जरूरी सी चीज होती है रिलेशनशिप। कोलीग्स, अपने कोवर्कर्स के साथ कैसे पेश आते हैं, क्या लोग आपको अप्रोच कर पा रहे हैं, आप अपने बॉस के साथ कैसे पेश आते हैं, क्या आप बात बात पर झल्ला जाते हैं, कैसे आप मैनेज करते हैं। और इसमें एक एटीट्यूड होता है कि पॉजिटिव। कोई कहता है अरे यार मुसीबत आ गई, इज दिस हाउ यू ट्रीट,
अरे परेशानी आ गई, चलो देखें हम क्या कर सकते हैं। तो सिर्फ आपके सोचने के तरीके से ये आपकी एक बहुत जरूरी स्किल है। लोग उनके साथ काम करना पसंद करते हैं जिनकी पॉजिटिव सोच होती है, जो कहीं भी अड़चन नहीं देखते, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल देखते हैं। और पर्सनल स्किल्स, अपने आप को आप कैसे पेश करते हैं। अगर आप उल्टे सीधे कपड़े पहन के, गंदे पुराने नए, इसकी ये ब्रांडेड की बात नहीं कर, जैसे भी हो प्रॉपरली अगर आप ड्रेस्ड हैं तो आप अपील करेंगे, सबसे पहला इंप्रेशन आपका उससे पड़ेगा। तो अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं? सेल्फ मैनेजमेंट इज हाउ डू यू कैरी योरसेल्फ। आपको जरूरी नहीं है सबसे महंगे कपड़े पहनने, लेकिन आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो कितने कॉन्फिडेंस से, आजकल तो हाथ मिला नहीं सकते, आजकल तो कोरोना है, तो आप हाथ जोड़ते हैं तो कितने कॉन्फिडेंस से। क्या आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है? हमारा मन करता है उनसे बात करने का जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। तो इन चीजों से भी बहुत फर्क पड़ता है। जब आप बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, कौन सी पोजीशन में आपका आत्मविश्वास झलकता है। और टेक्निकल स्किल्स वो होती है जो उस काम के लिए जरूरी है। अब एक ऑटो मैकेनिक की स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए। तो ये बट वो टेक्निकल स्किल्स है और ये सब स्किल नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन सब स्किल्स पे बहुत ध्यान देना है और इसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जो हम कुछ अभी बात करेंगे, जितना टाइम है उसके हिसाब से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सौरभ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, हाउ टू डेवलप दीज स्किल्स। अब इन स्किल्स को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? स्कूल में सोशल एक्टिविटी, हॉबीज डेवलप करके, जरूरी नहीं है महंगी से महंगी हो। वॉलंटियर वर्क आज की डेट में बहुत सारी जरूरत है। आपने देखा होगा जो लोग कैलकाटा में अभी वो अम्फन साइक्लोन आया, कितने ही लोगों के घर तबाह हो गए। किस तरह से हम मदद कर सकते हैं उनकी, या घर में कोई बुजुर्ग है हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। घर में बड़े हैं उनकी हम मदद कर सकते हैं। कोई आसपास है जिसको कोई जरूरत है, जिसकी हम जरूरी नहीं पैसे से मदद कर सकते, किसी भी तरीके से, उससे हमारी ये स्किल डेवलप होती है। घर के काम करके अपने घर के अपने आप को मैनेज करें, सुबह उठे अपना बिस्तर खुद बनाएं, अपनी चीजें खुद करें। इससे आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। ये बिल्कुल प्रूवन चीज है। सोशल एक्टिविटी मतलब आप लोग दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं या गैदरिंग में जाते हैं, फंक्शंस में पार्टिसिपेट करें। कम्युनिटी वर्क, जहाँ आप रहते हैं वहाँ के लिए क्या काम कर सकते हैं, अपने स्कूल के लिए क्या काम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई बोलेगा तभी आप करेंगे, आप अपना इनिशिएटिव ले सकते हैं। आप अपने स्कूल में कोई क्लब शुरू कर सकते हैं, कुछ शुरू कर सकते हैं कि अच्छा हमारे आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनको किताबों की जरूरत है। क्या मैं अपने स्कूल में सारे बच्चों को अगर मैं बोलूं कि आप 10-10 रुपए इकट्ठे करके उन बच्चे के लिए किताबें ले सकते हैं, या और कोई जरूरत हो, या स्कूल में ही सब श्रमदान करके कुछ बना सकते हैं। तो कुछ भी आप ऐसी उम्र में हैं कि अगर आपने एक बार सोच लिया तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, पर वो जो पहल है वो आपको करनी है। इन सब चीजों से आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, लीडरशिप डेवलप होती है, जो आपके आगे काम आएगी सक्सेसफुल होने में। चाहे आपका कोर्स हो नहीं, कैसा भी आपका कोर्स हो, आप उस कोर्स की लर्निंग को तभी यूज कर पाएंगे रियल लाइफ में जब आपके पास ये स्किल्स होंगी जो हमने पीछे अभी बात की। अगली स्लाइड प्लीज। I think we are done. Yeah. तो मेरी तरफ से आज इतने टाइम में इतना ही मैं बात कर सकती हूँ। काफी देर तक मैं
कर पाऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं, पर आज के लिए यही मैं आप लोगों से कहना चाहती थी। अब आप मुझे अपने सवाल बताएं तो मैं उनके उत्तर देने की जहां तक संभव हो कोशिश करूंगी। तो आप प्लीज या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं, और जब पूछेंगे तो प्लीज अपना नाम जरूर बताइएगा। Anyone is there to तो ask सवाल, them? any Yes, questions you want to ask? Yes. Ma'am, I want to ask. Yes, please. What's your name? Ma'am, Chainita Chakraborty. Okay. Paromita. Ma'am, Chainita. Chainita. Okay, Chainita. Yes, tell me. Ma'am, I wanted to ask, ma'am, one thing is that I love to study, I love to do a lot of hard work. But the problem is I don't have a specific dream or what I want to become. So after using these steps, would I be able to do something in my future? Yes. So since you love to study and you haven't yet thought, it's not that you don't have a dream, you have not thought about a dream. So it is time to think कि study तो ठीक है, आप ये भी बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, you are doing very well. Now just tell me that you have to sit down and think that what am I good at? If I love to study, what subjects do I love to study? Is this And what ma'am, one can more I... thing. Sorry to disturb you, ma'am. Ma'am, sometimes I feel like I could become a gynecologist, but sometimes I feel like I should become an officer. So there's a problem. That's not a problem. That's a very good state to be in, which means you are already thinking. So what you can do is, around you, just see if you can find a gynecologist. Can you find some time to talk to the gynecologist? What does it take to become a gynecologist? 2, what does a gynecologist have to do? 3, are you willing to do that most of your life? Do you see yourself? And if you find a gynecologist during vacation time, whenever you get a chance, talk to that gynecologist that can I spend some time in your clinic just to get a feel of how does it feel to be a gynecologist. This is one way to do it. Secondly, you said sometimes you want to be an officer. Please find an officer and talk to him. This is one way. The other way is go on Google and read about what is the job of a gynecologist. To become a gynecologist, what is it that I have to do? So becoming a gynecologist, you have to, if you just want to study, you'll have to study for probably 10 years before you can say that yes, you will become a gynecologist, basic. Then you will establish yourself. Am I ready for it? How much will it cost? What all exams will I have to appear? So ask those questions. Do research on your own. Talk to people around you. Then there is another way if you want. There are some tests that we do in our organization where we assess the personality and all these details that I talked about of the student, and then we say that whether gynecologist or what is the ideal career for you. So that is a scientific way to go about it. But till you are able to do that, please meet different kinds of people and figure out what does that profession mean. Okay? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. All the best, Anita. Yes. Any other questions? Thank you, ma'am. Yeah. Yeah, okay. Any other question?
Are there any other question? I see some hands raised. Lakshmi Meena, do you have a question? Arnav Rastogi. Arnav Rastogi. There are some hands raised. Nafisa Khatun, do you have a question? आपको कोई सवाल पूछना है? Ma'am, I have a question is there. Yes, please tell me your name. Ma'am, my name is Arnav Rastogi. Hello. How can I help you? Tell me. Yes, Ma'am, Arnav. I will go for civil services, but I am confused because there is my father's business. I am an only son. So what can I do? I lost you. That was you want to go into the civil services and you are the only child of your father and he has a business. Is that right? फातिमा खातून भी कह रही हैं मुझे IAS बनना है. यस, बहुत अच्छी बात है. और सिविल सर्विसेज में जाने के लिए सबसे पहले आपको एक बैचलर्स डिग्री लेनी होगी. दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट. वो आप किसी भी सब्जेक्ट में जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं. उसके बाद आपको तैयारी करनी होगी. मिनिमम बैचलर्स डिग्री चाहिए, मतलब आपको BA, BSc, BCom तो चाहिए ही चाहिए. तो पहले तो वो करना है और उसके बाद आपको सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम होता है. उसकी कई स्टेजेस होती हैं. प्रीलिम्स आई एम सेइंग, उसके लिए आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी. सिविल सर्विसेज UPSC का एग्जाम होता है. इसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है. तो सबसे पहले तो आप BA, BSc, BCom जो भी करना चाहते हैं वो करिए. उसके बाद उसकी तैयारी के लिए आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, पर उसमें काफी टाइम लगता है और सिविल सर्विसेज के लिए बहुत पेशेंटली तैयारी करनी होती है. और अभी से उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आपको अपनी जनरल नॉलेज बहुत बढ़ानी होगी. न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़िए, जनरल नॉलेज की किताबें पढ़िए, बहुत सारी किताबें पढ़िए. जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है उसके टॉपिक से इंटरनेट पे रिसर्च करके पढ़िए. बहुत कुछ फ्री उसके बारे में जितनी आप नॉलेज जान सकते हैं वो करिए. उन सब्जेक्ट से रिलेटेड यूट्यूब में चैनल में वीडियोस भी मिलेंगे आपको, जहाँ वो डिस्कशन करते हैं. डिबेट्स में पार्टिसिपेट करिए. तो अभी हाई स्कूल लेवल पे आपको ये करना है. फिर एक बैचलर्स डिग्री लेनी है और उस एग्जाम की तैयारी करनी है. उस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करनी होगी. आपके आसपास जरूर कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे जहां आप IAS की तैयारी या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं. अब अर्नव रस्तोगी का सवाल है, चौहान IPS के लिए भी सेम एग्जाम होता है बेटा, वही तैयारी करनी है जैसे मैंने बताया. और अर्नव, आपके फादर का बिजनेस है और आपके फादर चाहते हैं कि आप बिजनेस में जाएं और आप कंफ्यूज्ड हैं, तो उसके लिए आपको अपने फादर के साथ बात करनी होगी. बैठ के बात करिए कि पापा मैं ये करना चाहता हूँ, अब आप मुझे बताएं कि कैसे करें. और ये इस सवाल का जवाब आपके पापा दे सकते हैं. आप अपने पापा को कन्विंस करिए कि बिजनेस तो चलता रहेगा और मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आप प्लीज मुझे तैयारी करा दीजिए. और ये जवाब आपके पापा ही दे पाएंगे. इज दैट राइट अर्नव? Okay, ma'am. Okay beta, all the best. Yes ma'am, I am confused. I want to be a cricketer and my mother wants me to. तो सबसे पहले तो बेटा आपको क्रिकेटर बनने के लिए अपनी क्रिकेट की स्किल्स का दिखाना होगा. क्रिकेट में आप किस लेवल तक जा चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हो, स्टेट लेवल पे खेलते हो, कौन से लेवल पे, या स्कूल टीम में खेलते हो. और अपनी मम्मी को कन्विंस करना होगा इसके लिए. और इसके लिए मम्मी से ही बात करनी होगी कि वो क्यों डॉक्टर बनाना चाहती है. अगर आपका डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट नहीं है तो ये टाइम है कि मम्मी के साथ बात करें. और क्रिकेटर बनने के लिए भी क्या
उतनी ही मेहनत कर पाएंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मम्मी किस जगह से सोच रही है कि बेटा सेटल हो जाएगा या बेटी सेटल हो जाएगी, ठीक है। मुझे सीए बनना है, आपको बीकॉम करना पड़ेगा कार्तिक वार्ष ने। उसके लिए बीकॉम करना होगा और सीए की तैयारी करनी होगी। दैट इज फॉर कार्तिक वार्षने। देयर इज समवन हु सेड मैम I haven't thought of anything Shrestha. Now ma'am I have only one goal that I have to settle in America. बेटा अभी अमेरिका का वैसे सबसे बुरा हाल है, तो सोच समझ के सेटल होना। आपने सेटल होना है तो पहले क्या करोगे वहां जाके? सिर्फ अमेरिका जाने के लिए बहुत पैसे भी चाहिए होंगे, स्कॉलरशिप चाहिए, तो कैसे अप्लाई करना है वो पूरा प्रोसीजर है अगर आपको वहां पढ़ने जाना है तो उसके लिए आप हमसे अलग से बात करेंगे तो मैं समझा सकती। सॉरी, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, सो ये सवाल था। इट इज बैड दैट आई हैवंट थॉट अबाउट इट। इट इज नॉट बैड श्रेष्ठा, इट्स ओके, इट्स टाइम नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। इट इज नेवर टू लेट। ओके, Sanya Arora, you want to become a CA? I think I've answered it already. Okay, Shrestha, just start thinking. Make a goal and work towards it. Okay, any more questions? I think Saurabh, I think I'm done. I don't see more questions coming. MSc in chemistry. Yes, please go ahead and do MSc in chemistry. Of course. It's a good degree have. Ma'am, I want to become an artist. Of course, please figure out what kind of artist, where do you want to reach, what will you do. So you have to work backwards. Okay, Saurabh? Yes, ma'am. I want to be in army. Yeah, I want to be an army or politician. Army का अलग एग्जाम होता है बेटा, पॉलिटिशियन के लिए पहले पढ़ाई पूरी कर लें फिर पॉलिटिक्स में जाएंगे। I am confused ma'am between MBBS and MSc chemistry. सोचो MBBS बन के डॉक्टरी पढ़नी है या MSc chemistry करनी है। That you have to take a call. डॉक्टरी पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए 10 साल पढ़ाई करनी है। Paintings and sketch, yes, Shubh. You please do try your paintings and see if people like it. Try to sell them online. You will know what is the value, whether that is a good field for you, whether you people like it. Okay, Saurabh? Yes. आज के लिए इतना ही। I have answered most of the question. Go to IIM. I am bit confused. CA or IIM? IIM का एग्जाम अगर क्लियर हो जाए तो go for IIM. I want to be nurse. Yes, please go for bachelor's in nursing. Indian Army, please go for NDA exam. Okay. Yes, Saurabh, over to you. Yeah. Thank you so Thank you, much ma'am. for this So, opportunity. thank you very much, ma'am, Thank you, for ma'am. giving your precious time to us. Thank you so much, ma'am. Oh. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Coming to Thank the you, game. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. And all the best to all the children.